Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Please sing. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
Krishna Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare One more time, all together. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna. We welcome all of you to this Vedic Level 1 session. हम आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे Vedic Level 1 सेशन के सेमिनार में. And today we have a very interesting और ऐसा टॉपिक है जो हमारे लाइफ से एकदम जुड़ा हुआ है. And that is overcoming anger. ये एंगर एक ऐसी चीज है जिसको हम अपने सेल्फ एस्टीम के लिए जस्टिफाई करते हैं. सोचते हैं कि अगर हम एंग्री नहीं हुए इससे और एंगर कहीं पे उपयोग करना है, कहीं पे उपयोग नहीं करना है. इसकी एक आर्ट है और इसको हम देखते हैं कि अक्सर हम दुरुपयोग ही करते हैं. और मॉडर्न टाइम्स में ये देखा जाता है कि अपना गेट थिंग्स डन यू मस्ट यूज एंगर. पर आज हम एक वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू से, भगवद गीता पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज द आर्ट ऑफ हैंडलिंग एंगर. कैसे हम इसको उपयोग करना चाहिए, कहाँ पे इसको उपयोग करना चाहिए, एंड हाउ वी कैन कंट्रोल इट. एंड टू present this talk, present seminar on this topic, we have Mr. Shivanshu Singh amongst us. Mr. Shivanshu Singh has completed his IT from Amity University, and then he worked in a reputed companies like Wipro and HCL. Then he opened his own club, Ethic Craft Club, and he is currently working in a number of reputed institutes like Indian Institute of Technology, NIT. And this club is trying to build up values in students. और कई हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं ये भी इस क्लब को प्रमोट करते हैं. So he has lots of experience how things get done, how we have to use anger in proper situations. So we are very privileged. So let us hear from Mr. Shivanshu. Is this visible to all of you? Am I audible? Yes, you're audible. Okay, thank you so much. So, first of all, I would like to thank ISKCON Youth Forum for having invited me here to deliver few words of wisdom on this very important topic of overcoming anger. Because anger is an emotion from which all of us go through. ये एक ऐसा इमोशन है जिसको हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं, हम सभी अपनी लाइफ में गो थ्रू होते हैं और आए दिन कभी ना कभी हमें जो है इसके कारण प्रॉब्लम देखनी पड़ती हैं. तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? How to overcome this emotion of anger? So on this particular topic, we are going to have a very interesting discussion today. So I would request all of you to kindly be very, very attentive throughout this whole presentation. So before I start, I would recite some small prayers. So those who know these prayers, they can recite with me. Om Gyantimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimate
नमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी नाशात देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो ओवरकमिंग एंगर के टॉपिक पे आज हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। तो आई एम श्योर आप सभी लोगों को ये जो एंगर का जो इमोशन है ये आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में। तो जो भी लोग आपने इसको जो है एक्सपीरियंस किया है, आप में से जिन भी लोगों ने, वो बिना अपने माइक को जो है अनम्यूट किए हरि बोल बोल सकते हैं। तो एक बार की बात है कि एक बार एक हस्बैंड था। तो हस्बैंड ने क्या किया कि उसकी वाइफ के साथ जो है लड़ाई हुई, और जब वाइफ के साथ लड़ाई हुई तो वाइफ के बाद साथ जब लड़ाई बहुत एक्सट्रीम हो गई, तो क्या हुआ कि हस्बैंड जो है गुस्से में उसने वाइफ को घर की खिड़की से धक्का दे दिया, और धक्का देके जो है उसको नीचे गिरा दिया। और फिर उसके बाद इमीडिएटली जो है वो भागते भागते पुलिस स्टेशन में गया। तो पुलिस स्टेशन में जाके उसने पुलिस इंस्पेक्टर को बोला कि प्लीज लॉक मी अप, प्लीज लॉक मी। तो पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। तो उसने बोला कि आई हैव थ्रू माय वाइफ बिकॉज ऑफ माय हंगर, and because I have threw my wife, now I am in danger. So the policemen were little confused. So they asked ki what happened, did she die? So this person said no, she has not died, she is still alive. And then I'm saying please lock me. So that is how anger can be a dangerous phenomenon. So many times you may do something out of anger, and later on you may. I remember a very interesting story about a very interesting incident, real life incident, that I would like to narrate with all of you. I am sure many of you who must be hearing this presentation, आप में से कई लोग जो है फुटबॉल के बहुत फैन होंगे। अभी तो वैसे फुटबॉल मैचेस अनफॉर्चुनेटली कोरोना कारण नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर आप सभी लोग फुटबॉल के फैंस होंगे, फुटबॉल के मैचेस को फॉलो करते होंगे। तो आज से मैं 8 साल पहले का एक इंसिडेंट बताता हूं जो कि रियल इंसिडेंट है। तो आज से लगभग 8 साल पहले 2012 में फ्रांस और इटली के बीच में, आप में से शायद कई लोगों को इस इंसिडेंट के बारे में पता भी हो, तो फ्रांस और इटली के बीच में फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जा रहा था। तो ये जो फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल था ये फ्रांस और इटली के बीच में खेला जा रहा था। और इस मैच की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी थी कि ये एक तो फाइनल मैच था वर्ल्ड कप का, जिसके बेसिस पे 2012 का फुटबॉल वर्ल्ड कप चैंपियन डिक्लेयर हुआ था। साथ ही साथ इस फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैच के बाद ये मैच जिनेदिन जिदान जो कि फ्रेंच फुटबॉल कैप्टन थे उनका फाइनल मैच होने वाला था। तो जिनेदिन जिदान अगर आप इंटरनेट पे देखें तो बहुत ही फेमस फुटबॉल प्लेयर रहे हैं, एंड he had led his team to glory throughout his career before this final match. तो क्या हुआ कि फाइनल मैच जो है चल रहा था, तो फाइनल मैच में जिनेदिन जिदान और पूरी फ्रेंच टीम जो है इटली के साथ खेल रही थी। तो सडनली 60th मिनट तक सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ जो है नॉर्मल चल रहा था। लेकिन सडनली 61th मिनट पे इटली का एक प्लेयर है, उसका नाम है मैतेरेजी। तो मैतेरेजी के साथ कुछ झड़प हुई जिनेदिन जिदान की। तो जिनेदिन जिदान ने बताया कि मैतेरेजी एलिजिडली सेड समथिंग। तो मैतेरेजी ने कुछ बोला, और उस बोलने के कारण जिनेदिन जिदान को इतना गुस्सा आया, इतना एंगर आया कि जिनेदिन जिदान ने अपने सर को जो है इस प्लेयर मैतेरेजी की छाती पे मारा। He headbutted Materazzi. And the moment this incident was done, जैसे ही ये पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ, immediately the referee came
and he showed a red card to Zinedine Zidane. और जैसे ही ये रेड कार्ड ज़िनेदिन ज़िदान को दिखाया गया, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था ये था कि now he had to go out of the match and he could not play anymore after that. So just imagine, इतना ग्रेसफुल कैरियर था, इतना शानदार, इतना ग्लोरियस कैरियर था ज़िनेदिन ज़िदान का, but what a disgraceful end to his wonderful career. Playing in the final match, leading his team to glory, but just because that one moment of anger he could not control, that anger led to a very disgraceful end to his career. इसीलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन बोलते थे कि what begins in anger ends in shame. तो इसीलिए ये टॉपिक जो है हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना कि जो एंगर को जो है कंट्रोल हमें करना चाहिए. नहीं तो कई बार जो है आपको ऐसे भी देखो आपको ऐसे भी इमोशंस आएंगे कि एंगर जो है हमारी एनर्जी को पॉजिटिवली यूटिलाइज करने में हेल्प करता है, या एंगर से हम जो है मेनी टाइम्स वी बिकम पैशनेट अबाउट अचीविंग आवर ऑब्जेक्टिव्स, आवर गोल्स, बट एंगर मोस्ट ऑफ द टाइम रिजल्ट्स इन डिस्ट्रक्टिव इमोशंस. इसीलिए इस एंगर को जो है कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है. तो अगर हम इस एंगर को कंट्रोल नहीं करेंगे और इस एंगर को कंट्रोल करने की कला को जो है नहीं सीखेंगे, तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है. तो इसीलिए हम जो है इस टॉपिक को आज हम कवर कर रहे हैं. तो आज हम इस टॉपिक में जो है 5 थीम्स कवर करेंगे. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम, फिर हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स, फिर हम डिस्कस करेंगे कॉज, फिर हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन, और फिर हम इसका डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन. तो ये 5 पॉइंट्स में हम जो है इस पूरे के पूरे जो सेशन है इसको हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे. वैसे तो ये थोड़ा बड़ा सेशन है, तो हो सकता है कई पॉइंट्स सारे के सारे कवर ना भी हो पाए, बट स्टिल वी वुड ट्राई आवर बेस्ट टू cover as many points as we can so that we all are benefited through this discussion. So first of all, let us try to define the problem. तो प्रॉब्लम क्या है, ये इसकी पहले डेफिनेशन समझने का प्रयास करते हैं. फिर उसके बाद हम इसके ऊपर कुछ कोट्स पढ़ेंगे और फिर हम कुछ कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे. तो डेफिनेशन जो है जो की दी गई है वो है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिस्प्लेजर और एग्रेसिव हॉस्टिलिटी अराउज्ड बाय रियल और सस्पेक्टेड रॉन्ग. तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिस्प्लेजर एंड एग्रेसिव हॉस्टिलिटी, एक असंतोष की भावना, एक एग्रेशन जो कि रियल या सस्पेक्टेड रॉन्ग के होने पे हमारे अंदर आता है, उसको एंगर बोलते हैं. इसके ऊपर एक रियल इंसिडेंट मैं आपको बताता हूं कि आज से कुछ टाइम पहले क्या हुआ था. एक सीआईएसएफ का एक जवान था. तो सीआईएसएफ, ये बहुत फेमस इंसिडेंट था, इसको काफी न्यूज़पेपर्स ने भी रिपोर्ट किया था कि सीआईएसएफ के एक जो जवान था, तो उसने जो है अपने सीनियर ऑफिसर जिनका नाम था उनको May 24 को उन ऑफिसर का नाम था अरुण कानितकर. तो अरुण कानितकर को उनके एक सबऑर्डिनेट ने जो है एक गोली मार दी थी. तो जानते हैं वो गोली मारने का कारण क्या था? वो गोली मारने का कारण ये था कि वो कॉन्स्टेंटली अपने आसपास के लोगों से, अपने फैमिली मेंबर्स से सुन रहा था कि जो सिस्टम में जो लोग हैं वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, वो जो है अपनी मनमानी करते हैं, वो जो है जिस तरीके से वो चाहते हैं उस तरीके से चीजों को चलाते हैं. तो इस तरीके की चीजें वो बार बार सुन रहा था कि ऑफिसर्स करप्ट हैं, ऑफिसर्स जो है अपनी ड्यूटीज को नहीं फुलफिल करते हैं. तो सडनली क्या हुआ कि ये जो व्यक्ति था, ये जो सीआईएसएफ में ही था जिसने इस इंसिडेंट को अंजाम दिया, ये जो है अपने बॉस अरुण कानितकर के पास गया और इसने जाके जो है अपनी लीव्स के लिए अप्लाई किया. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अरुण कानितकर जो इनके बॉस थे, इन्होंने इनकी लीव को नामंजूर कर दिया. अब जैसे ही ये लीव्स की एप्लीकेशन नामंजूर हुई, तुरंत क्या हुआ, जो कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिस्प्लेजर एंड एग्रेसिव हॉस्टिलिटी. So he became displeased and he decided to shoot his boss. And the moment anger came, this was the result. So you can understand
that whenever there is a pleasure, there is a feeling of displeasure of or aggressive hostility is involved, then you have to be very much cautious कि you are very much in the danger zone. इसीलिए इंग्लिश में ही कहा जाता है कि anger is one word short of danger. अगर आप DANGER जो वर्ड है उससे अगर आप D हटा दो तो क्या होगा, तो एंगर हो जाएगा. इसीलिए whenever you are angry you have to understand that you are coming in the danger zone. And next definition is a response to the frustration of an unsolved problem. So if you talk about frustration, so कई बार क्या होता है कि हम सबकी लाइफ में देखिए फ्रस्ट्रेशंस आते हैं या कई ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको हम अपने लेवल पे सॉल्व नहीं कर पाते. अब उनको सॉल्व नहीं कर पाने के कारण जो है जो फ्रस्ट्रेशन आता है तो उससे कई बार जो है एंगर हमें आता है. जैसे आप देखो अमेरिका में क्या हुआ है कि सडनली कुछ टाइम पहले जो है देखा ऐसा ट्रेंड देखा गया कि जो है काफी क्राइम रेट्स जो है बढ़ रहे थे. तो क्राइम रेट्स बढ़ने के कारण क्या हुआ कि स्कूलों में मर्डर्स के इंसिडेंट्स बढ़ने लगे और मर्डर्स के इंसिडेंट्स जो है बढ़ने के कारण पीपल वेर फीलिंग लिटिल फियरफुल. तो ये डिस्कशन हुआ अमेरिकन इंटेलिजेंसिया में कि कैसे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए. तो अमेरिकन इंटेलिजेंसिया में जब इसके ऊपर डिस्कशन हुआ तो उन्होंने जानते हैं इसका क्या प्रॉब्लम सजेस्ट किया. उन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सजेस्ट किया कि लेट अस अलाउ ऑल द पीपल टू हैव गन. लेट अस अलाउ ऑल द पीपल टू हैव गन. सो नाउ द क्वेश्चन वाज हाउ दिस इज गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा. तो उन्होंने इसके पीछे आइडिया दिया कि सपोज if a person A gets angry and he decides to shoot B, तो इससे पहले A B को शूट करे, B क्या करेगा, B A को शूट कर देगा. Now the point is that really a solution? क्या ये वास्तविकता में एक solution है? No, this is not a solution. Rather, this is further going to create more problem. So this is going to keep the problem unresolved. So the third definition is sudden violent displeasure accompanied by impulse to retaliate. तो ये हमने कुछ जो है definitions जो है समझने का प्रयास किया. अब हम आगे पढ़ते हैं, कुछ कोट्स पढ़ेंगे इसके ऊपर. तो कोट्स में सबसे पहला कोट है कि men are like steel, when they lose temper they lose their worth. देखिए क्या होता है कि स्टील जो है उसकी एक वैल्यू होती है. तो अगर जो है वो अपना टेम्पर लूज कर दे या उसका जो है टेम्परेचर जो है उसको फ्लक्चुएट कर दिया जाए तो क्या होता है कि उसको वो चेंज के कारण उसकी जो रियल वैल्यू है वो खत्म हो जाती है. तो उसी तरीके से men are like steel, so when they lose temper they lose their worth. Next, we all boil at different degrees. So हम सभी के जो है boiling points होते हैं, है कि नहीं. इंग्लिश में बोला जाता है कि whenever people see a girl they reach to their melting point, and whenever they see a boy, especially a boy from whom they are annoyed, they reach to their boiling point. So now we all may have different boiling points, but we all boil at different degrees. Next, holding anger is like grasping of hot coal with you only. तो अगर आप जो है अपने अंदर गुस्सा रखते हो तो गुस्सा रखना किस तरीके से है, ये उसी तरीके से है जैसे कि मान लीजिए आपने गरम गरम कोयला जो है अपने हाथ में पकड़ रखा है. अब देखिए आप हाथ में कोयला पकड़ रखा है, आप हो सकता है उसको फेंक के किसी को जो है नुकसान कर सकते हो, लेकिन जितनी देर आप उसको अपने साथ में रखोगे उतनी देर तक वो आपको भी नुकसान करता है. तो इसीलिए जो है आप उसके कारण क्या है कि अब आपने ठीक है वो तो कर दिया, आपने उसको हार्म कर दिया, लेकिन साथ साथ वो आपको भी तो नुकसान कर रहा है ना. तो holding anger is like grasping of hot coal with you only. Anger is a wind that blows out
लैंप ऑफ द माइंड। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं त्रयवेदम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधम तथा लोभ तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत। भगवान गीता में बताते हैं कि नरक जाने के 3 द्वार हैं। नरक के तरफ जो है अगर किसी व्यक्ति को जाना है तो उसके लिए 3 द्वार हैं। क्या क्या वो 3 द्वार हैं? पहला है काम, दूसरा है लोभ और तीसरा है क्रोध। तो काम, क्रोध और लोभ ये तीनों क्या है? नरक के द्वार हैं। और एंगर क्या होता है? जब आता है तो व्यक्ति के दिमाग की बत्ती क्या होती है? बुझ जाती है, सिंपल भाषा में। नेक्स्ट, if heart is a volcano, then how can you expect flowers to bloom? Anger is 1 letter short of danger. ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। The matchstick has a head but no intelligence and hence it flares up. मतलब अगर आपको जो है गुस्सा आता है और अगर आप उसको इंटेलिजेंस से कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप समझ लीजिए वो गुस्सा क्या करेगा? वो जो गुस्सा है वो आपको जला के राख कर देगा। तो इसीलिए जो है इस गुस्से को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसलिए आज हम जो है इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या क्या इसके परिणाम होते हैं, इसके ऊपर जो है हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे बिकॉज वी हैव टू कवर लॉट ऑफ थिंग्स। तो सबसे पहली जो इसमें कॉन्सिक्वेंस है, क्या परिणाम होते हैं, तो वो है तो साइकोलॉजिकल कॉजेस में आप देखिए जब गुस्सा होते हैं लोगों किसी पे, तो गुस्सा होने का क्या परिणाम होता है कि डायरेक्टली हमारे नर्वस तो नर्वस सिस्टम होने के कारण आप देखिए जब भी हम गुस्से में होते हैं तो हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, हमारा चेहरा लाल हो जाता है और हमारी जो हार्ट बीट है वो फास्ट हो जाती है। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है इवन कई बार हमारे से एक दूसरे व्यक्ति तक भी ट्रांसमिट हो सकता है। जैसे एक बार की बात है कि एक मदर थी, एक रियल इंसिडेंट है कि एक मदर थी एंड शी वाज फीडिंग हर मिल्क टू द चाइल्ड, सो शी वाज ब्रेस्ट फीडिंग। तो वो जब ब्रेस्ट फीडिंग कर रही थी तो वो जो है ब्रेस्ट फीडिंग के समय जो है शी वाज फीलिंग वेरी एंग्री। तो ऐसा साइंस बताती है कि जब whenever you are angry तो some very harmful toxins are released। तो because she was breastfeeding and she was the angry at that time, तो उसके कारण क्या हुआ कि उस एंगर के कारण उस बच्चे की जो है लेटर ऑन डेथ हो गई। तो when you are angry then you have to understand that your physical state and your psychological state is not normal, है कि नहीं? तो इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। दूसरा हुआ इमोशनल कॉन्सिक्वेंस। तो इमोशनल कॉन्सिक्वेंस में अगर आप देखिए कि इमोशनल लेवल पे क्या इसके परिणाम होते हैं कि जब भी व्यक्ति एंगर होता है ना तो उसके कारण जो है उसके इमोशंस डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। और इमोशन के कारण जैसे वे बोलते हैं ना कि भाव में बह गया, तो कई बार व्यक्ति जो है भाव में बह के कुछ ऐसा काम कर देता है जिसके कारण जो है वो लेटर ऑन पछताता है। जैसे कि मैंने इस सेशन के शुरू में आप लोगों को स्टोरी सुनाई उस हस्बैंड की जिसने गुस्से में आके अपनी वाइफ को जो है नीचे फेंक दिया था एंड देन ही रैन टू पुलिस स्टेशन इन ऑर्डर टू गेट हिमसेल्फ लॉक्ड अप बिकॉज ही वाज अफ्रेड ऑफ हिज वाइफ बिकॉज हिज वाइफ हैड सर्वाइव्ड। सो दैट इज द वन थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अमेरिका में अगर आप देखो तो अमेरिका में जो है सॉफ्टवेयर चाहे टेक्नोलॉजी बेशक ग्रो कर रही हो, टेक्नोलॉजी भी ग्रो कर रही है, लेकिन 2 इंडस्ट्रीज जो है बहुत ज्यादा ग्रो कर रही हैं। वो 2 इंडस्ट्री जानते हैं कौन सी है? वो 2 इंडस्ट्री है, पहला लॉयर की और दूसरा है साइकेट्रिस्ट की। तो ये दोनों इंडस्ट्रीज क्यों ग्रो कर रही हैं? क्योंकि इमोशनल लेवल पे लोगों को बहुत इनस्टेबिलिटी है। तो एक्सटर्नली जब उनको डिस्टर्बेंस होती है तो वो कई बार कुछ ऐसा गुस्से में कर देते हैं जिसके कारण कुछ पुलिस केस आता है, उनको लॉयर के पास जाना पड़ता है। और अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो उसके कारण इमोशनली इतना इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि उसके बाद उस डिप्रेशन से निकलने के लिए उनको साइकेट्रिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरीके से जब भी
हम ये इमोशंस, ये जो एंगर का जो इमोशन है, इससे हम डोमिनेट होते हैं, तो क्या होता है, ये डायरेक्टली हमारे इमोशंस या हमारे इमोशनल लेवल को भी अफेक्ट करता है। तो इसीलिए हमें जो है इसको बहुत ध्यानपूर्वक चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सोशल लेवल पे। तो सोशल लेवल पे अगर हम एंगर की बात करें तो हम देखते हैं कि अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की बात करो, तो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 कितना मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ। तो इस मैसिव डिस्ट्रक्शन के कारण आप देखिए इतना लॉस हुआ प्रॉपर्टी का, इतना लॉस हुआ लाइफ का। किस लिए? जस्ट बिकॉज ऑफ हंगर, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डिजायर टू डोमिनेंस। एंड वो डिजायर जब नहीं फुलफिल हुई तो क्या हुआ, अटैक करो और अटैक करके पावर को हासिल करो। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब व्यक्ति को जो है हंगर आता है तो सोशल लेवल पे भी इसका जो है काफी परिणाम जो है भुगतना पड़ता है। फाइनेंशियल लेवल पे भी अगर आप देखिए कि कई ऐसे लोगों के बारे में हम ऐसा सुनते हैं कि किसी व्यक्ति ने जो है किसी से जो है कुछ पैसा उधार लिया था, और पैसा उधार लिया, लेकिन पैसा उधार लेने के बाद उसको चुकाना भी पड़ता है। अब नहीं चुका पाए तो चुका पाने के कारण क्या हुआ कि एंगर आया, और एंगर में जाके या तो खुद को मार लिया या फिर उस व्यक्ति के साथ कुछ गलत कर दिया ताकि जो है उसको नुकसान हो। देन फिफ्थ इज इंटरनल। तो इंटरनल लेवल पे हम देखते हैं कि जब भी व्यक्ति को जो है गुस्सा आता है, जब भी व्यक्ति जो है परेशान होता है, तो वो क्या करता है, वो इमोशनली बहुत इम्बैलेंस हो जाता है। इसीलिए जो है मैंने जो कोट पढ़ा उसमें भी एक कोट में आपने पढ़ा कि एंगर इज वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर। तो जब भी अगर आपको एंगर आ रहा है तो आप समझ लो यू आर इन डेंजर जोन। तो नाउ यू हैव टू सेफगार्ड योरसेल्फ। कॉर्पोरेट, तो कॉर्पोरेट लेवल पे भी हम देखते हैं कि एंगर के जो है बहुत सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस कई बार होते हैं। तो इसके ऊपर एक मुझे फनी इंसिडेंट याद आ रहा है कि एक बार क्या हुआ कि एक एम्प्लॉय था, तो वो एम्प्लॉय जो है अपने बॉस के पास गया और उसने अपने बॉस के पास जाके जो है अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट किया। और रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करने के बाद उसने अपने बॉस से बोला कि आई वांट एन एक्सपीरियंस लेटर ऑफ 2 ईयर विद यू। तो उसके बॉस ने बोला कि आपने तो इस कंपनी के साथ सिर्फ 6 महीने काम किया है, व्हाई डू यू वांट एन एक्सपीरियंस लेटर ऑफ 2 इयर्स? तुमको 2 साल का एक्सपीरियंस लेटर क्यों चाहिए? तो उसने बोला कि वर्किंग विद यू हैज बीन सो फ्रस्ट्रेटिंग, हैज बीन सो एंगर ट्रिगरिंग फॉर मी कि 6 months have proven to be like 2 years for me। ये जो 6 महीने हैं, ये पिछले 6 महीने मेरे लिए इतने ट्रॉमेटिक रहे हैं, इतने मुश्किल रहे हैं कि ये जो है 2 साल के बराबर है। इसलिए मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस लेटर चाहिए। एंड फेमिलियर लेवल पे हम जानते ही हैं, कई बार जो है अनफॉर्चुनेटली हम आए दिन सुनते रहते हैं कि व्यक्ति जो है कई बार खुद को मार लेता है, कई बार किसी दूसरे को मार देता है, कई बार अपनी फैमिली को मार देता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हर एक लेवल पे, कहने का मतलब ये इस तरीके से मैंने सिस्टमैटिकली इसलिए एनालाइज करने का प्रयास किया कि हम ये समझ सके कि हर एक लेवल पे प्रॉब्लम आती है अगर हम जो है इस एंगर को नहीं कंट्रोल करें। तो इसीलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो है इसको कंट्रोल करें, और इसको कंट्रोल करने के लिए जो भी पॉसिबल मैकेनिज्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं हम उनको करने का प्रयास करें। तो अब समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तविकता में इसका कारण क्या है, एंगर आता क्यों है। तो एंगर आने का तो पहले तो हम जो है इसका कॉज एनालाइज करने का प्रयास करेंगे, वैदिक रीजंस के माध्यम से थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो वैदिक अप्रोच में हम लोग डिस्कस करेंगे ओरिजिन एंड डायनामिक्स। तो ओरिजिन में हम जो है भागवतम के 3 स्कंद में पढ़ते हैं ब्रह्मा जी के विषय में कि सबसे पहले जो है क्रोध का जो वो देखा गया, जो इमोशन देखा गया, वो ब्रह्मा जी के अंदर देखा गया। तो ओरिजिन जो है, जो क्रोध का एक्चुअली में देखा गया, वो ब्रह्मा जी से देखा गया।
तो क्या हुआ था कि ब्रह्मा जी ने जो है 4 कुमारों को प्रकट किया था। 4 कुमार जो है वो ब्रह्मा जी के सबसे पहले पुत्र थे। तो उन्होंने जो है जब उनको प्रकट किया, तो उनको प्रकट करने के कारण जो है तो उनको जब प्रकट किया, तो उनको प्रकट करने के बाद उन्होंने जो है उनको आदेश दिया कि अब आप जो है संसार को आगे बढ़ाइए। अब आप जो है इस जो क्रिएशन है इसको आगे बढ़ाइए बाय क्रिएटिंग मोर प्रोजेनी। इस संसार में और जो है संतानों को उत्पन्न करके आप क्या करो, आप जो है इस संसार की जो मूवमेंट है उसको आगे लेके जाओ। तो जब उन्होंने ऐसा आदेश दिया, तो क्या हुआ, वो जो 4 कुमार थे उन्होंने इस बात को करने से मना कर दिया। अब जैसे ही उन्होंने ये करने से मना किया, इमीडिएटली ब्रह्मा बिकेम इन्फ्यूरिएटेड, उनको क्रोध आ गया। और जब उनको क्रोध आया, तो क्रोध आने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने क्रोध में जो है इसके बाद उनके क्रोध के कारण एक स्पेशल एंटिटी प्रकट हुआ, जिसके कारण जो है पूरी पृथ्वी को काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो ये ओरिजिन है ये वास्तविकता में ब्रह्मा जी से हमें देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद जो भागवतम का जो चौथा स्कंद है उसमें भी जो है ब्रह्मा जी बताया गया है कि कैसे किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने जो इस संसार के विनाश के कारक हैं उनको जो है प्रकट किया। तो उसमें रुद्र हैं, और रुद्र, क्योंकि अब देखिए इस संसार में 3 प्रोसेस होती हैं, क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन। तो अगर क्रिएशन जो है ब्रह्मा जी करते हैं और डिस्ट्रक्शन जो है भगवान विष्णु करते हैं, तो मेंटेनेंस जो है भगवान विष्णु करते हैं, तो उसके बाद डिस्ट्रक्शन के लिए भी कोई चाहिए। तो फिर उसके बाद ब्रह्मा जी ने क्या किया, इस डिस्ट्रक्शन के लिए जो है भगवान शिव या रुद्र को प्रकट किया। तो इस प्रकार से हम जो है वो चौथे स्कंद में इसको पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो है ये तो पूरा दिया हुआ है। तो इसको जो है ये थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि जो एंगर है, जो क्रोध है, वो रिसाइड कहाँ करता है, कहाँ इसका रेसिडेंस है। क्योंकि देखिए अगर आपका कोई शत्रु है और अगर आपको उस शत्रु के बारे में ये नहीं पता कि वो कहाँ रहता है, तो आप कभी भी उसको जो है पकड़ के उसको कंट्रोल में नहीं कर पाओगे। तो इसके ऊपर श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में दिया गया है, हिद इंद्रियाणि असुर व्योमा वायुर अग्नि जला महा सूर्य चंद्र तपश्चैव स्थानानि अग्नि कथानि च। तो क्या क्या रेसिडेंस बताए गए हैं। सबसे पहला है हार्ट, दूसरा क्या है सेंसेस, और तीसरा क्या है एयर ऑफ लाइफ, चौथा स्काई, पांचवा एयर, छठा फायर, सातवां वाटर, 8 अर्थ, 9th सन, 10th मून, 11th ऑस्टेरिटी। तो ये सब जो है रेसिडेंसेस बताए गए हैं। अब डायनामिक्स को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तविकता में एंगर में होता क्या है। कि देखिए एंगर किस लिए आता है, तो इसके पीछे कुछ डायनामिक्स हैं। सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होता है जो हम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो है एंजॉयमेंट एटीट्यूड। एंजॉयमेंट एटीट्यूड मतलब आई वांट टू सैटिस्फाई माय सेंसेस, मैं जैसा चाहता हूं वैसा होना चाहिए। जैसे कॉर्पोरेट्स में बोला जाता है माय वे और दी हाईवे, अगर जैसा मैं चाहता हूं वैसा तुम अगर करोगे तो ठीक है, नहीं तो यू टेक योर ओन वे। सो माय वे और हाईवे। इसीलिए अगर आप देखो कि इवन हमारा जो आई, ये जो आई वर्ड है, ये आई वर्ड अपने आप में बहुत स्पेशल है इंग्लिश ग्रामर में। इंग्लिश ग्रामर में क्या है कि अगर पूरा सेंटेंस आपने कहीं भी लिखा हो, जहां कहीं भी ये वर्ड आएगा आई, तो हमेशा ये जो है कैपिटल में लिखा जाता है। व्हाई? बिकॉज इट इज आई, सो आई एम इंपॉर्टेंट, so therefore this has to be written employment attitude।
egocentric attitude, तो I can fulfill my desire. तो जब हमारे अंदर ईगो बहुत ज्यादा होता है ना, अब क्वेश्चन ये होता है कि सर ईगो जो है ठीक है, ईगो तो हम सभी का होता है और ईगो हर्ट हो जाए तो बहुत बुरा भी लगता है, लेकिन ईगो अगर देखिए तो क्या होता है कि उसके बाद प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होता है। तो इसीलिए जो है इस ईगो सेंट्रिक एटीट्यूड के कारण व्यक्ति को क्या लगता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन को मैं फुलफिल कर सकता हूँ, और अगर मैं नहीं फुलफिल कर सकता तब जो भी इसको फुलफिलमेंट में बाधा बनेगा मैं उसको क्या करूँगा, रास्ते में बता दूंगा। जैसे आज से कुछ टाइम पहले आप लोग शायद नहीं करते होंगे, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, तो वहाँ पे एक कोरियन स्टूडेंट पढ़ता था, तो दिस कोरियन स्टूडेंट गॉट मैड and he started he went into university and he started shooting, and when he started shooting, एक पूरा का पूरा हुआ, उसमें कई सारे लोगों की जान गई, उसमें इनफैक्ट एक इंडियन प्रोफेसर और एक इंडियन लड़की भी थी जिसकी जान गई। तो लेटर ऑन उसको पता था कि उससे पूछा गया, जब व्हेन ही वाज कॉट, उससे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने बोला कि that there are few people who are becoming obstacle in fulfilling my desire. They are the people who are becoming an obstacle in the fulfillment of my desire. इसीलिए मैं सोचा कि मैं सबको रास्ते दिखा दूं। कार रेट बोला Egocentric attitude। तीसरा है frustrated attitude। तो आप सभी से प्रार्थना है कि आप में से जो भी लोगों ने अपना माइक जो है ऑन कर रखा है, तो आप लोग अपना माइक बंद कर दीजिए, ताकि जो है इसको सेशन को हम लोग पूरा कंडक्ट कर अकेले शादी नहीं किया। तो थर्ड है फ्रस्ट्रेटेड एटीट्यूड। तो फ्रस्ट्रेटेड एटीट्यूड, आई वांटेड टू बट आई कुड नॉट। मैं कुछ करना चाहता था लेकिन मैं नहीं कर सका, इसलिए मुझे हमें गुस्सा आता है। Thus anger is caused by unfulfilled lust। तो इस प्रकार से हमने जो है इसको समझने का प्रयास किया। तो अब हम इसको जो है आगे बढ़ के अब हम फाइनल पार्ट पे आके इसके सॉल्यूशंस को समझने का प्रयास करते हैं। तो सॉल्यूशन पार्ट पे इससे पहले हम लोग बढ़ें, तो सॉल्यूशन पार्ट में देखिए सॉल्यूशंस बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मैं जो सॉल्यूशंस की बात करूंगा वो बहुत सिंपल ही हैं, बट पॉइंट ये है कि उनका एप्लीकेशन बहुत डिफिकल्ट है। तो सबसे पहला स्टेप टू कंट्रोल एंड कॉन्कर द एंगर इज कंट्रोल द एंगर। हाउ टू कंट्रोल द एंगर? कि मान लीजिए कहते हैं कि अगर मान लीजिए आप बहुत गुस्से में हैं, और अगर आप गुस्से में हो, आपने जो है गुस्से के कारण में डिसाइड कर लिया है कि यू आर गोइंग टू ब्लास्ट अ पर्सन, आप उस व्यक्ति को बिल्कुल खत्म कर दोगे, तो क्या करो कि पूरा का पूरा मेल लिख लो। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। एक पूरा का पूरा मेल लिख लीजिए, उसमें जो है पूरी अपनी हृदय में जो भी आपके इमोशंस हैं, जिनको आप शायद उस समय नहीं कह पाए, जिनको आप उस समय कंफर्टेबल नहीं थे, जो भी भड़ास है आपके हृदय में, उसको आप निकाल लीजिए, एक मेल टाइप कर दीजिए। अब मेल टाइप करके उसमें मेल में जो कुछ भी लिखना है उसको आप लिख दो। लेकिन मेल को पूरा टाइप करने के बाद तो क्या करो, एक चीज उसमें नहीं करना है। वो एक चीज जानते हैं क्या है? वो एक चीज ये है कि उसको सेंड का बटन जो होता है मेल में, वो सेंड को बटन को बस मत दबाओ। अगर आपने उस सेंड के बटन को नहीं दबाया और उसको जस्ट ड्राफ्ट में सेव कर दिया, अब देखना 3 दिन बाद आप वही मेल पढ़ोगे ना, या 2 दिन बाद या कुछ देर बाद, आप उसको जितना भी टाइम आप देखो, कुछ टाइम बाद आप जब उस मेल को पढ़ोगे तो आपको उस मेल को पढ़ के लगेगा कि वास्तविकता में जिस लिए मैं उतना गुस्सा कर रहा था वो वास्तविकता में इतना गुस्सा करने लायक है ही नहीं, उसको इतना गुस्सा होने की आवश्यकता है ही नहीं, तो क्यों इतना गुस्सा होना। सेकेंड स्टेप 2 इज कॉन्कर एंगर, है ना, कॉन्कर एंगर। अब ये कैसे करना है? देखिए कॉन्कर आप तभी कर पाओगे
जब आपके पास कुछ ऐसा मैकेनिज्म होगा जिसके माध्यम से आपके पास कुछ हायर पावर है उसको कंट्रोल करने की। तो भगवत गीता से मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा। तो भगवत गीता में एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालॉजी भगवान ने दी है। वो इंटरेस्टिंग एनालॉजी है चैरियट बॉडी एनालॉजी। चैरियट बॉडी एनालॉजी क्या कहती है? भगवान ने, अगर आप में से जिन भी लोगों के पास इस्कॉन की भगवत गीता हो तो उसमें आप लोग ये एनालॉजी देख सकते हैं। इसको बहुत सुंदर तरीके से एक फोटो और पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है कि उसमें दिखाया गया है कि जैसे मान लीजिए एक चैरियट है, एक रथ है। तो रथ को कौन ड्राइव करता है? रथ को ड्राइव करते हैं घोड़े, और उन घोड़ों को कौन कंट्रोल करता है? उन घोड़ों को कंट्रोल करती है लगाम। और लगाम को कौन पकड़ता है? लगाम को पकड़ता है सारथी। तो भगवान भगवत गीता में ये जो चैरियट एनालॉजी है, चैरियट एनालॉजी के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से समझते हैं इस तरीके के नेगेटिव इमोशंस को कॉन्कर करना है या इवन माइंड को कंट्रोल करना है। तो भगवान बताते हैं कि अगर जो है घोड़े, अगर जो है मान लीजिए वो स्ट्रांग है, अगर घोड़े में जो है वो ज्यादा शक्तिशाली है, तो क्या करेंगे? उनका जिधर मन करेगा वो उधर भागेंगे। आप सभी इससे एग्री करेंगे। तो अब घोड़ों को कंट्रोल करने की क्या बहुत इंपॉर्टेंट है? वो है लगाम। तो लगाम अगर मजबूत होगी तो ही जो है घोड़े जो है एक सीधी दिशा में चलेंगे। नहीं तो क्या होगा कि वो हर एक जो 5 के 5 घोड़े हैं वो अलग अलग दिशा में जाएंगे। और लगाम को कौन कंट्रोल करता है? लगाम को कंट्रोल करता है सारथी। तो गीता में भगवान बताते हैं कि वास्तविकता में ये जो 5 घोड़े हैं, ये जो 5 हॉर्सेज हैं, ये 5 हॉर्सेज हैं हमारी 5 सेंसेस। ये 5 सेंसेस जो है 5 हॉर्सेज की तरह है। और ये जो लगाम है जो इन घोड़ों को कंट्रोल करता है, ये क्या है? ये है हमारा माइंड। तो अगर हमारा जो माइंड वो जो है स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होगा? वो जो सेंसेस हैं वो घोड़ों को, वो जो घोड़े हैं उनको कंट्रोल कर लेगा, जो कि घोड़ों के द्वारा रिप्रेजेंट की गई है। और अगर मान लीजिए माइंड स्ट्रांग नहीं है और जो है घोड़े ज्यादा ताकतवर है, मतलब सेंसेस ज्यादा ताकतवर है, तो क्या होगा कि फिर उसके बाद जो है वो फिर जो है कंट्रोल नहीं हो पाएंगे। अब लगाम को कौन कंट्रोल करता है? लगाम को कंट्रोल करता है रथ पे बैठा हुआ सारथी। तो ये सारथी कौन है? ये सारथी है इंटेलिजेंस। तो भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि अगर आपको एंगर को कंट्रोल करना है, इसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस चैरियट बॉडी एनालॉजी को ध्यान में रखते हुए आपको सारथी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्योंकि अगर सारथी स्ट्रॉन्ग होगा तो ही सारथी जो है लगाम को मजबूती से पकड़ सकता है, और अगर लगाम मजबूत होगी तो ही जो है घोड़े एक दिशा में भागेंगे। तो उसी प्रकार से अगर हमारी इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस जो है माइंड को कंट्रोल कर सकती है, और अगर माइंड कंट्रोल होगा तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो भी इधर उधर नहीं भटकेंगी। तो इस प्रकार से ये 2 स्टेप सॉल्यूशन जो है हमने डिस्कस किया। और फिर उसके बाद कई सारी चीजें और भी हैं जो कि कंट्रोल एंगर करती हैं, जैसे पेशेंटली, प्राइवेटली, प्रूडेंटली, पावरफुली, पॉजिटिवली और पर्सनली इन सबको डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये सब सॉल्यूशन है, अगर हम देखें तो इन सबके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। बट इसमें मैं एक एस्पेक्ट जो फाइनल उसमें डिस्कस करना चाहूँगा वो है पर्सनली। तो पर्सनली का जो एप्लीकेशन है वो है कि देखिए, जब भी आपको गुस्सा आता है ना, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, एंगर जो है वो हमारे एक इमोशंस का परिणाम है। तो इमोशंस जब आते हैं तो इमोशंस हमें किसी को शेयर करना चाहिए। तो अगर हम रियलिटी में एंगर को कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर हम रियलिटी में चाहते हैं कि हमारा जो एंगर है वो कंट्रोल हो सके, तो वो जो हो सकता है हमें से कई लोगों को लगे कि सर ये तो नेगेटिव इमोशन है, तो नेगेटिव इमोशन को हम कैसे शेयर करते हैं? नेगेटिव इमोशंस को हम जो है कैसे वो कर सकते हैं? तो आपको बताना, तो आपको देखिए सिंपल सा उपाय, आपको उन नेगेटिव इमोशंस को भी शेयर करना पड़ेगा।
और जब आप उसको शेयर करोगे किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे आप प्यार करते हैं, तो आप देखना वो कुछ ऐसा सॉल्यूशन बताएगा जो आप उस एंगर के कारण उस समय नहीं सोच पा रहे हो, लेकिन नहीं। और फिर उसके बाद अगर आप उस सॉल्यूशन को अप्लाई करोगे तो आप देखना कुछ टाइम बाद जो है आपको वो एंगर जो है लगेगा नहीं कि वो एंगर जो है जिस कारण से आप इतना एंग्री हो रहे थे वो वास्तविकता में इतना एंगर होने की आवश्यकता थी। तो इस तरीके से जो है इस पूरे के पूरे एंगर कंट्रोल के मैकेनिज्म को हमें जो है समझना पड़ेगा। बाकी और भी कई सारे इसमें प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम जो है डिस्कस कर सकते हैं, बट अभी आज की प्रेजेंटेशन में मैं जो है इतने ही पॉइंट्स अभी कवर करूंगा। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को जो है कई चीज़ें इसमें क्लियर हुई होंगी और मैंने कई एग्जांपल्स जो है आप लोगों को लेके इसको क्लियरिफाई करने का प्रयास किया कि एग्जैक्टली इन चीज़ों को कैसे समझना है। बाकी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो और आप लोग कोई फीडबैक देना चाहें तो आप लोग जो है अपना फीडबैक जो है जो आप लोगों को फीडबैक का लिंक शेयर किया गया होगा उससे आप शेयर कर सकते हैं। और बाकी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था कि हम अपने फ्रस्ट्रेशन को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि एक बार आपने बताया, एक बार मैंने अमोघ लीला प्रभु जी का वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने बताया था कि हमें हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना चाहिए अपने मन को शांत करने के लिए। लेकिन मंत्र वो पढ़ते हरे कृष्णा करते करते भी प्रभु जी हमारे दिमाग में ना बहुत सारी चीजें आने लगती है कि हमारा उस पर फोकस नहीं हो पाता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है ना कि ठीक है जो थॉट्स आते हैं वो एक अलग चीज है, क्योंकि देखिए साइंस जो है ना, साइंस कहता है कि हमारे माइंड में एक सेकंड में 7 थॉट्स आते हैं इन अ सिंगल सेकंड। एक सिंगल सेकंड में हमारे माइंड में 7 थॉट्स आते हैं। आप सोचिए एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, लगभग 86,400 कुछ सेकंड्स होते हैं। तो इतने सेकंड्स में मल्टीप्लाई बाय 7 कीजिए, कितने थॉट्स हमारे दिमाग में एक दिन में आ सकते हैं। थॉट्स आते हैं वो एक चीज है। एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ पे शुरू होती है ना, प्रॉब्लम शुरू होती है जब हम उन थॉट्स पे ड्वेल करना शुरू करते हैं, है कि नहीं। जब हम उन थॉट्स पे सोचना शुरू करते हैं तो थॉट क्या होता है ना कि थॉट जो है इनिशियली बहुत छोटा होता है। जैसे आप देखो कि एक ब्लॉटिंग पेपर पे अगर आप इंक डालो तो इंक इनिशियली क्या होती है, एक ड्रॉप की तरह होती है, एक छोटा सा ड्रॉप होगी। लेकिन धीरे धीरे करके वो इंक क्या करती है, वो इंक पूरे के पूरे ब्लॉटिंग पेपर पे फैल जाती है, राइट। इसी तरह एक और एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। जैसे कई बार क्या होता है, आप कभी ट्रेन में जा रहे हो तो ट्रेन में जाते हुए कई बार जो है व्यक्ति, मान लीजिए कोई फैमिली आपके सामने बैठी है, तो आपके पास मान लीजिए आपके और आपके फ्रेंड के पास 2 सीटें हैं और उनके पास जो है 2 सीटें हैं, लेकिन उनके पास एक्चुअली में ज्यादा की रिक्वायरमेंट है क्योंकि उनके पास फैमिली पैक है पूरा। नॉर्मली द पीपल वांट टू हैव 6 पैक बट मेनी टाइम्स दे एंड अप हैविंग अ फैमिली पैक। So they have a family pack and because they have a family pack, so अब उनके पास जो है सीट्स कम है, मान लीजिए उनके पास 2 ही सीट है लेकिन उन 2 सीटों पे एडजस्ट कर पाना मुश्किल है। तो क्या होता है कि कई बार जो है वो अब उसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया थोड़ा बच्चे को बिठा लीजिए, भैया थोड़ा बच्चे को सीट दे दीजिए, राइट। ऐसा होता है कई बार। तो आप भी क्या करोगे, आप भी कई बार आउट ऑफ कंपैशन में आके आप जो है उस बच्चे को सीट दे दोगे। अब शुरू में आप देखोगे, शुरू में आप जो है ना उसको थोड़ा सा सीट दोगे, लेकिन क्या होगा थोड़ी देर बाद वो बच्चा क्या करेगा ना, वो बच्चा थोड़ी देर में पूरी की पूरी आपकी सीट पे बैठ जाएगा और आपकी जो आपको जो है ना सीट के किनारे पे ढकेल देगा। आपको पता चलेगा कि आप जो है कि पूरा किनारे, थोड़ा किनारे पे बैठे हुए, थोड़ा अनकंफर्टेबली बैठे हुए हो और वो जो बच्चा है वो पूरा कंफर्टेबली बैठा हुआ है। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है। तो उसी तरीके से क्या होता है ना कि थॉट्स जो है हमारे द माइंड में आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। तो थॉट्स आने से जो है उससे प्रॉब्लम नहीं है।
प्रॉब्लम कहाँ पे शुरू होती है ना, प्रॉब्लम शुरू होती है जब हम उन पे ड्वेल करना शुरू करते हैं। अब पॉइंट आता है कि ये जो थॉट्स हैं इनको कंट्रोल कैसे करना है ना। तो जैसे आपने बताया कि चैंटिंग करने का आपने सुना था। यस, चैंटिंग इज डेफिनेटली अ वेरी पावरफुल सॉल्यूशन, क्योंकि जो चैंटिंग होती है ना, जो मंत्र होता है, तो मन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मन। मन जो मंत्र जो वर्ड है वो मन प्लस त्र वर्ड, दो वर्डों से मिलके बना है। तो मन मतलब माइंड और त्र मतलब डिलीवर। तो मनस्त्रायते इति मंत्र। तो क्या होता है कि मन को जो चीज ताड़ती है उसको क्या, उसको बोलते हैं मंत्र। तो चूंकि अब मंत्र देखिए, जब मंत्र है, आप कर रहे हैं मंत्र, तो मंत्र जो है अगर मान लीजिए आप कर रहे हो उसको जो है माइंड, उससे आप जो है कुछ रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो क्या होता है ना कि देखिए रिजल्ट आने में भी टाइम लगता है कई बार देखिए, जब किसी किसी को डिजीज जो है थोड़ा ज्यादा होती है तो कई बार मेडिसिन को भी असर होने में टाइम लगता है। और कई बार जो है जब डिजीज उतना गहरी नहीं होती तो तुरंत जो है मेडिसिन क्या करती है, असर करती है। तो एज पर द कंडीशन ऑफ द पेशेंट मेडिसिन में ऑल्सो एक्ट अकॉर्डिंगली। तो हो सकता है कि देखिए आप अभी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन क्या अब जो है आपको चेक करना पड़ेगा, क्या जिस तरीके से जो है मतलब चैंटिंग करने के लिए बताया गया है, क्या आप उस तरीके से कर रहे हो, क्या जितना इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम या जिस क्वालिटी की चैंटिंग जो है बताई गई है, क्या हम उसको कर रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ के हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम जो है उस तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं तो अब डोंट वरी, रिजल्ट जो है आएगा, है कि नहीं। हो सकता है अभी तुरंत हमें ना दिख रहा हो रिजल्ट, लेकिन आप देखिएगा धीरे धीरे आप करते रहोगे ना, तो इवन मैं बता रहा हूँ कि करते हुए भी, जैसे आपने बोला कि चैंटिंग करते हुए भी आता है, तो करते हुए भी आएगा, ऐसा नहीं है कि जो है नहीं आएगा। क्योंकि इवन कई बार आप देखो, और इवन जैसे मान लीजिए एक कमरा है सपोज, है ना, तो एक कमरे में अगर मान लीजिए बहुत गंदगी रही हो है, और अगर मान लीजिए आप उस गंदगी को बहुत दिन से साफ ना किए हो, तो कई बार जो है आप उस गंदगी के बीच में रह रहे हैं तो उतना शायद पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप गंदगी को साफ कर दोगे तो जो है क्या होता है कि वो गंदगी जो है एक बार आपने उस गंदगी को साफ कर दिया, तो थोड़ी सी भी अगर उसके बाद गंदगी आपको दिखेगी ना, तो वो क्या करेगी, वो फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, वो फिर आपको जो है परेशान करेगी, डिस्टर्ब करेगी। तो उसी तरीके से क्या होता है कि कई बार जो है जब व्यक्ति कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मेडिसिन जब थोड़ा-थोड़ा असर करने लगती है, तो कई बार जो है थोड़ा भी वो दिखने लगता है कि थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है उसमें या थोड़ा असर नहीं हो रहा है, तो हम थोड़ा इम्पेशेंट हो जाते हैं। बट कहने का मतलब ये है कि हमें थोड़ा पेशेंटली जो है प्रोसेस को अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार चीज़ों को रिजल्ट आने में टाइम लगता है और ये तुरंत होगा भी नहीं, है ना। ग्रेजुअली रिजल्ट आएँगे, बट आप इसको करते रहोगे तो आप देखना कि धीरे-धीरे करके आप जो है इस प्रोसेस में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। जैसे कि मान लीजिए ट्रेन है, तो अगर आपने मान लीजिए ट्रेन का टिकट परचेज़ कर लिया है, तो ट्रेन का टिकट आपने परचेज़ कर लिया है मान लीजिए लखनऊ तक जाने का, और अगर आप लखनऊ तक, अब आप मान लीजिए 8 घंटे की जर्नी है, और 8 घंटे की जर्नी में अगर आप जो है 2 घंटे बाद सोचने लगो, अरे अभी तो लखनऊ आया नहीं, है कि नहीं, तो परेशानी होने लगेगी। या मैं कर तो रहा हूँ, मैं ट्रेन में बैठा तो हूँ, मैं गलत ट्रेन में तो नहीं बैठ गया, डाउट आने लगेगा। लेकिन आप जो कि ट्रेन में बैठे हुए हो, आप सही ट्रेन में बैठ गए हो, आपको दिख रहा है कि अभी गाजियाबाद आ चुका है, फिर गाजियाबाद के बाद आगे हापुड़ आ चुका है। तो इस तरीके से दिख रहा है कि जो है कुछ माइलस्टोन्स जो कि की माइलस्टोन्स है वो अचीव हो चुके हैं। तो अगर मान लीजिए वो अचीव हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ टाइम बाद आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा, आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। तो उसी तरीके से मान लीजिए अगर आप कर रहे हो, और अगर अभी जो है मान लीजिए ठीक है 100% कंट्रोल नहीं हो पा रहा, लेकिन मान लो 10% भी कंट्रोल हो रहा है या 5% भी कंट्रोल हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आप इम्प्रूव कर रहे हो। तो इस तरीके से जो है हमें इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आशा है आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी मेरे एक और क्वेश्चन है। यस प्रभु जी, जैसे कि हम कि जो गुस्सा होता है हम सबके अंदर होता है सूक्ष्म रूप में, तो ऐसा क्यों होता है कि किसी के अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है और किसी में नहीं होता। और आजकल जैसा कि हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जिनको समाज की कोई जानकारी भी नहीं है, उनमें भी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। देखिए प्रॉब्लम ये है ना कि गुस्सा जो है वो एक्चुअली जो ट्रिगर है
है ना, वो ट्रिगर के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि किस तरीके से जो है व्यक्ति रिस्पॉन्ड करता है। बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है वो है कि जो है व्यक्ति मतलब किसी के अंदर ज्यादा होता है कम होता है, वो तो ठीक है ना, किसी के अंदर ज्यादा होता है कम होता है, लेकिन उसका ज्यादा होने का कम होने का परिणाम क्या होता है कि वो जो है जो रिजल्ट आता है उसके ऊपर बेसिकली आपका क्वेश्चन है। एक्चुअली में वो डिपेंड करता है कि उस चीज को ट्रिगर किसने किया है ना, व्हाट इज दैट इमोशन या व्हाट इज दैट पर्टिकुलर रीजन व्हिच हैज ट्रिगर्ड दैट इमोशन। क्या वो पर्टिकुलर चीज है जिसने वो ट्रिगर किया है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो जो गुस्सा है वो ज्यादा है या कम है ना, क्योंकि उसी के हिसाब से व्यक्ति क्या करेगा, एक्ट करेगा। जैसे कि मैंने आपको ये जो सीआईएसएफ के जवान का बताया जिसने अपने जो सीनियर थे अनुप कांडनिचकर उनको मार दिया था, तो उसको जो है इतना गुस्सा क्यों आया, क्योंकि वो बार बार सुन रहा था कि जो है जो सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं, वो अपने नीचे के लोगों की केयर नहीं करते, वो जो है अपने लोगों की इच्छाओं की जो है किसे वो उनको क्रश करते हैं, वो बार बार ऐसा सुन रहा था। अब जैसे ही उसने जो है लीव के लिए अप्लाई किया और लीव सैंक्शन नहीं हुई, उसकी लीव जो है नहीं अप्रूव हुई, तो तुरंत क्या हुआ कि उसने जो है अब गुस्से में आके अपने जो सीनियर थे उसको शूट कर दिया, है कि नहीं। तो या जैसे मैंने बताया जिनेदिन जिदान का आप लोगों को रियल एग्जांपल, ये भी मैंने आप लोगों को रियल एग्जांपल दिया, आप लोग इसको ये तो इंसिडेंट आप लोग इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो, शायद इसका वीडियो भी अवेलेबल मिल जाएगा आप लोगों को इजीली। तो पॉइंट ये है कि वो चीज जो है ट्रिगर किससे होती है, और ट्रिगर के साथ साथ दूसरा जो है गुस्सा किसी के अंदर कम होना ज्यादा होना, ये इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति ने किस तरीके से जो है अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए जो है अपने माइंड पे वर्क किया है। देखिए अगर उस व्यक्ति ने अपना माइंड को कंट्रोल करने के लिए अपने माइंड के ऊपर वर्क नहीं किया है, तो वो किसी भी प्रकार से वो जो है वो गुस्सा जो है निकल सकता है। इवन आप देखिए कि कई बार क्या होता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच मान लो अगर चल रहा हो, तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में अगर जो है सपोज पाकिस्तान जो है हार गया, तो कई बार कई पाकिस्तानी फैन जो है अपना टीवी तोड़ देते हैं, है कि नहीं, गुस्से में आके कि भारत से कैसे हार गए, है कि नहीं, इंडिया इज आवर आर्च राइवल, वी मस्ट हैव टू विन, और इंडिया से हार गए तो इसीलिए जो है टीवी तोड़ के फेंक दिया, इतना गुस्से में आ गए। तो मेन जो गुस्से के जो रिस्पॉन्स है वो डिपेंड करता है कि किस इमोशन के कारण ट्रिगर हो रहा है, और उस इमोशन, उस पर्टिकुलर इमोशन को कंट्रोल करने के लिए आपने कितना काम किया है अपने खुद के ऊपर। अगर मान लीजिए आपने कुछ भी काम नहीं किया है, आप पूरी तरीके से जो है उस जैसे कहते हैं ना भाव में बह गया, आपने भाव में बहने की कला सीखी है, तो फिर तो समझ लो वो एंगर जो है आपका डिस्ट्रक्शन ही करेगा। इसलिए क्योंकि एंगर इज एनीवे वन वर्ड शॉर्ट ऑफ डेंजर, तो एंगर अगर आपको आ गया तो यू आर इन डेंजर जोन। तो इसीलिए मैंने बताया कि किस इमोशन और कितना अपने माइंड को कंट्रोल करने के ऊपर या अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने के ऊपर जो है वर्क किया है, और उसके ऊपर डिपेंड करता है। और तीसरा मैंने जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा है, इवन मैंने कई आर्टिकल्स भी इसके ऊपर पढ़े हैं कि काफी जो है अगर आप किस तरीके के एनवायरनमेंट में रहते हैं ना, उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। जैसे अगर आप बहुत वायलेंट एनवायरनमेंट में रहे हो, या बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं, या बहुत ज्यादा ऐसे सीन्स देखते हैं लगातार जिसमें काफी वायलेंस है, तो ऐसे वो जो है भी है आपके एंगर को काफी ट्रिगर करते हैं। स्पेशली बताया जाता है, एक स्टैटिस्टिक्स में पढ़ रहा था, तो स्टैटिस्टिक्स में बताया गया था कि जहां भी टीवी जो है पहुंचता है उस एरिया में अगले 10 साल में जो है क्राइम रेट क्या होती है, लगभग डबल हो जाती है। तो डबल हो जाने का कारण जो है क्या है, कहीं ना कहीं जो है इस तरीके के जो सीन्स है जो दिखाए जाते हैं वो ट्रिगर करते हैं। तो वो जो ट्रिगरिंग एजेंट्स हैं, उन ट्रिगरिंग एजेंट्स से हमें अपने आप को बचाना पड़ेगा। तो अगर आप बार बार उन चीजों को देख रहे हो तो यू विल ऑल्सो फाइंड एन इम्पल्स, और उस इम्पल्स में क्या होगा, कई बार गलत फैसला हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। हेलो प्रभु जी। यस हरे कृष्ण प्रभु जी। ये क्वेश्चन था मेरा जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी, सारे रूल पता भी चल गए कि क्या करना है क्या नहीं करना, भगवान का भोग लगाना हो गया, बुक्स पढ़नी है और चैंटिंग करनी है, प्रभु जी सारा समझ में आ गया। बट एक चीज होती है कि बीच बीच में ये होता है कि यार मतलब भक्ति कुछ नहीं है, नकली है, ऐसा ऐसा मतलब थॉट आते हैं बीच बीच में, तो ऐसा क्यों होता है?
मतलब रोकते हैं कि मतलब पूरा इसमें कुछ नहीं है, बोरिंग है, ये इसमें मतलब ऐसा लगता है कि मतलब नकली है। तो ऐसा क्यों होता है, ये पूछना था मेरे को। देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है ना कि हम जब भी कोई प्रोसेस शुरू करते हैं ना करना, तो जब वो चीज़ नई-नई होती है तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप देखो, जब नई-नई किताबें हमको मिलती हैं, तो नई-नई किताबों को पढ़ने में कितना अच्छा लगता है, हम कितना सँभाल के रखते हैं। या नई-नई जो है जब हमें कोई कपड़े मिलते हैं या कुछ भी चीज़ जब नई हम शुरू करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, एक बहुत एक्साइटमेंट रहता है। कोई नया मोबाइल आएगा, उसको बहुत सँभाल के रखेंगे। कोई भी नया जो है ज जब भी हमारे पास कोई चीज़ नई होती है ना, कोई भी नया प्रोसेस, कोई भी नया गैजेट, कोई भी नई चीज़ हम शुरू करते हैं, तो वो जो न्यूनेस है ना, दैट न्यूनेस ऑफ दैट थिंग ब्रिंग्स एक्साइटमेंट, है कि नहीं? वो न्यूनेस जो है उसके उस चीज़ के साथ जो एसोसिएटेड है, वो क्या करती है, वो एक्साइटमेंट लाती है। लेकिन वास्तविकता में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे-जैसे वो न्यूनेस जो है खत्म होने लगती है ना, तो क्या होती है कि वो फिर डलने लगने लगती है। और ये चीज़ हमारे साथ हर एक प्रोसेस में होती है। आप इवन देखो, अगर आप जो है चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो इवन आप कोई भी चीज़ करना शुरू करो, जैसे आप टाइम टेबल बना के पढ़ना शुरू करो, चाहे आप जो है तो जिम जाना शुरू करो, तो शुरू में बहुत एक्साइटमेंट रहेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद इवन जिम जाना भी बर्डन लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें हार्ड वर्क करना पड़ता है, फिर मोनोटोनस लगने लगती है। तो हर चीज़ क्या होती है कि वो जो न्यूनेस है, वो न्यूनेस जो है, वो जो एक्साइटमेंट लाती है ना, वो न्यूनेस का एक्साइटमेंट कुछ टाइम बाद खत्म हो जाता है। अब वो जो न्यूनेस के कारण जो एक्साइटमेंट आ रहा था, वो अब खत्म हो गया है, तो अब आपका क्वेश्चन ये है कि उसको एक्साइटेड बने कैसे रहें? तो देखिए, बने रहने का एक सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि सबसे पहले तो यू हैव टू लर्न टू अप्लाई योरसेल्फ इनटू द प्रोसेस। आपको जो है अपने को उसमें अप्लाई करने की कला सीखनी पड़ेगी। अप्लाई करने की कला का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप जो है कोई एक व्यक्ति है, वो एक पर्टिकुलर चीज़ करनी ही करनी है, ठीक है ना? वो उसको अवॉइड नहीं कर सकता। जैसे कि मान लीजिए एक दिल्ली मेट्रो का ड्राइवर है, तो उसको जो है मेट्रो ड्राइव करनी ही करनी है। ही नोज़ दिस फैक्ट। अब वो जो है ये बोले कि मुझे एक ही रूट पे जो है रोज़ चलाना अच्छा नहीं लगता। आई डोंट लाइक टू ड्राइव ऑन द सेम रूट डेली। तो क्या उससे काम बनेगा? नहीं बनेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको जो है अप्लाई करना पड़ेगा अपनी जो जो भी स्किल सेट है, उसको इस तरीके से, ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ भी परफ़ॉर्म कर सके और साथ ही साथ जो उसके जो जो एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है, उसके कारण उसके ऊपर कोई हैम्परिंग ना हो। तो बेसिकली जो कहने का पॉइंट जो यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आपको समहाउ ये जो न्यूनेस के कारण जो एक्साइटमेंट है, वो तो देखो कुछ ही टाइम के बाद कुछ ही टाइम तक रहेगा, वो तो टेम्पररी है, उसका आप कुछ कर ही नहीं सकते। वो तो हर एक चीज़ है, चाहे आप चैंटिंग की बात कर रहे हो, आज से कुछ टाइम बाद आप कुछ और शुरू करोगे, वो फिर उसमें भी खत्म हो जाएगा, फिर कुछ और शुरू करोगे, फिर उसमें भी खत्म हो जाएगा। तो वो न्यूनेस तो ज़्यादा टाइम तक वैसे ही नहीं रहेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसमें अप्लाई करने का प्रोसेस जो है शुरू करना पड़ेगा। तो अप्लाई करने का प्रोसेस कैसे शुरू होता है? फिर आप जो है ऐसे लोगों से मिलते हैं जब, है ना? जो कि जो है, अब जैसे मान लीजिए कि आपको जो है सपोज़ पढ़ाई करना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन पढ़ाई करना आपको अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के एसोसिएशन में रहोगे, ऐसे लोगों के बीच में जाके बैठ जाओगे जिनको पढ़ना अच्छा लगता है, जो कि जो है उस माहौल में है, जिनको जहाँ पे जो है पढ़ाई का माहौल है, तो आपको भी क्या करेगा, एक इंस्पिरेशन आएगा पढ़ने का, है कि नहीं? फिर आप भी जो है पढ़ने के लिए कुछ प्रयास करोगे, फिर आप भी जो है उसको वो करोगे। इसीलिए एक साथ जब पढ़ने बैठते हैं, तो क्या होता है, कई बार जो है अच्छी उस तरीके से एक अच्छा रिजल्ट भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो। तो उसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दूसरों की हेल्प लेनी पड़ेगी बेसिकली। क्योंकि क्या है कि अगर मान लीजिए आपको एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है, तो कोई दूसरा व्यक्ति है जिसको एक्साइटमेंट आ रहा है, आप उसको अप्रोच करो। जब आप उस व्यक्ति को अप्रोच करोगे ना, तो वो आपको अपने संग में रखेगा, आपको अपने साथ में रखेगा। आपको साथ में रखेगा, तो जब वो आपको हेल्प करेगा, जब वो आपके साथ में जो है उसी प्रोसेस को करेगा, तो उसको देख के आपको भी एक्साइटमेंट आएगा। और फिर उसके बाद आपके लिए जो है उस जो डलनेस है उसको ओवरकम करना ईज़ी हो जाएगा, है ना? दूसरा जो डलनेस को ओवरकम करने का जो तरीका है, वो है टारगेट बेस्ड जो है चीज़ें करना।
तो टारगेट अगर आप कुछ नहीं सेट करोगे ना कि आज मुझे जो है इतना करना है, तो फिर क्या होगा, फिर जो है प्रोसेस या कुछ भी कर रहे हो तो आप वो डल लगने लगेगी, फिर लगने लगेगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, है ना, इसकी जगह मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। तो कुछ टारगेट रखना सीखो, ऑलवेज हैव सम टारगेट, है कि नहीं। प्लेइंग अ फुटबॉल विदाउट अ गोल पोस्ट इज ऑफ नो यूज। कोई भी फुटबॉल मैच अगर आप खेल रहे हो लेकिन बिना गोल पोस्ट के खेल रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो उसी तरीके से अगर आप जो है कुछ टारगेट नहीं रखते चलते हो तो उसके बिना भी जो है कुछ ज्यादा कुछ आप कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है इसको करना पड़ेगा। थैंक यू प्रभु जी। आई थिंक वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो शायद और क्वेश्चंस लेने का भी समय नहीं है, तो we will wind it up here, and maybe some of you have any more questions, you can discuss with your facilitators, you can discuss with your spiritual friends and come up with more thoughts on this. So we would like to thank Mr. Shivanshu Singh for his wonderful seminar and answering our questions. And we would request all of you to kindly share your feedback to the feedback link that has been provided to you all in the chat box. और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए सेशन के लिए. We will do only 2 minutes chanting of mantra meditation of Hare Krishna Mahamantra. So 2 मिनट के लिए हम हरे कृष्ण महामंत्र को करेंगे, then we will conclude it. तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जिनके पास ये जप माला है वो जप माला ले सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो देख सकते हैं और साथ में हमारे दोहराने का प्रयास कर सकते हैं. तो इस माला को हमें ऐसे पकड़ना है कि सेंट्रल बीट को छोड़ते हुए हमें आगे से इसको चैंट करना है. ध्यान रहे कि आपकी पहली उंगली जो है टच ना हो, और इस प्रकार से हम हरे कृष्ण महामंत्र को स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य पंचतत्व मंत्र, चैंट. तो आप सब लोग पीछे पीछे दोहरा सकते हैं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. This Hare Krishna Mahamantra is very powerful mantra. So इसको आप चाहें तो आप डेली कर सकते हैं और आप बेनिफिट फील कर सकते हैं in 1 week. So आपसे रिक्वेस्ट है कृपया फीडबैक फॉर्म जरूर भरिएगा, जो आपके चैट बॉक्स में फिर से भेज दे रहा हूँ. और नेक्स्ट वीक वी विल मीट एट द सेम टाइम 5 o'clock, और नेक्स्ट वीक का टॉपिक होगा, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक. सो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आपके सेशन के लिए. थैंक यू सो मच.